السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں ناجائز طریقے سے قائم مندر کی توسیع کے لیے اشرار نے 400 سالہ قدیم عمارت میں سوراخ کر دیا۔ تاریخی عمارت کے تحفظ کو یقینی بنانے محکمہ آثار قدیمہ سے مجلس کی نمائندگی، مجرمانہ غفلت پر اظہار افسوس۔ پکوان گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ، بغیر سبسڈی والے سلنڈر کی قیمت 922 روپے۔ متحدہ جدوجہد سے ہی ریاست کی ترقی ممکن، حکومت عوام کے تحفظ اور امن کی برقراری کی پابند، یوم تاسیس تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ اور وقف بورڈ کے سی ای او عبدالغفار کو ہٹا دیا گیا، 4 پر خبر نشر ہونے کے دوسرے دن وقف بورڈ کا ہنگامی اجلاس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں قائم بھاگیہ لکشمی مندر کی غیر قانونی توسیع کے لیے اشرار نے منصوبہ بند طریقے سے کام کرتے ہوئے قدیم تاریخی عمارت میں سوراخ کر دیا۔ اس طرح اس تاریخی اور ثقافتی ورثے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرقہ پرست عناصر امن و ہم آہنگی کی فضا کو متاثر کرنے پر مصر ہیں۔ بار بار شرنگیزی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور امن پسند شہریوں کے صبر و تحمل کو توڑنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانوروں کی منتقلی کو ہیرا بنا کر اپنا مقصد پورا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ سبزی منڈی میں چلے کو آگ لگانے کا واقعہ پیش آیا اور اب چار مینار سے متصل غیر قانونی مندر کی توسیع کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تعجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ شہر میں کشیدہ حالات کے باوجود اشرار کو ایسی سرگرمیوں کا موقع دیا جا رہا ہے۔ چار مینار کے انسپیکٹر شیام بابو کی نگرانی میں مندر کی توسیع کا کام شروع کیا گیا۔ چار مینار ایک تاریخی عمارت ہے جس میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ دنیا بھر میں اس تاریخی چار مینار سے ہی حیدرآباد کی پہچان ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چار مینار کا تحفظ حکومت، پولیس اور محکمہ آثار قدیمہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں سے اس عظیم تاریخی و ثقافتی ورثے کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ جرأت کا حال یہ ہے کہ اشرار نے مندر کی تعمیر کی کوشش کے دوران چار مینار کے ایک مینار میں سوراخ بھی کر دیا۔ یہ دیکھیے کس طرح سے چار مینار میں سوراخ کیا گیا ہے، جبکہ اس مقام پر ایک روز پہلے تک بھی کوئی سوراخ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ مقامی پولیس کی سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ اس عظیم تاریخی ورثے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ کیا کر رہا ہے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے پارٹی کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کو چار مینار روانہ کیا، جن میں پارٹی کارکنوں اور مقامی عوام کے ساتھ رات میں 12 بجے سے صبح 7:30 بجے تک احتجاج کرتے ہوئے تعمیری کام کو رکوایا
اور पुलिस में तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई। एहतजाज की इत्तला मिलने के बाद एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अमित गर्ग और डीसीपी सौजून अकुन सबरवाल चारमीनार पहुंचे। उन्होंने मंदिर के पास जमा होकर शरंगेजी की कोशिश करने वाले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दीगर फिरका परस्त तंजीमों के कारकुनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और इस गैर कानूनी कोशिश को नाकाम बनाया। विश्व हिंदू परिषद कारकुन बड़ी चौड़ी के पास जमा होकर मनसूबाबंदी के साथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने भजन के जरिए इसकी कोशिश को मजहबी रस्म की शक्ल देने की कोशिश की, फिर इसका नाजायज फायदा उठाते हुए उन्होंने चारमीनार को नुकसान पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया। मजलिस के एहतजाज के बाद जमा होने वाले पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए शरंगेजी को नाकाम बना दिया। चारमीनार के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने महकमे पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो शहर में अमन की बरकरारी के लिए संजीदा दिखाई नहीं देती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महकमे आसार कदीमा की मुजरिमाना गफलत पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सदियों कदीम तारीखी इमारत के नक्शे में किसी मंदिर का वजूद ही नहीं है और ये नक्शा भी महकमे के पास मौजूद है, फिर भी जिम्मेदार मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और अदालत के हुक्म को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि महकमे आसार कदीमा से नुमाइंदगी की गई है कि चारमीनार पर मौजूद मस्जिद में नमाजों की इजाजत दी जाए। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो अमन को बरकरार रखें। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज के जमहूरी और आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए तारीखी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चारमीनार मंदिर के पास गैर कानूनी तौर पे वहाँ पर कुछ तोसी का काम हो रहा था टेम्पल का, उसको डिप्टी कमिश्नर को इसकी कंप्लेंट की है और यहाँ पर काफ़ी देर तक रात तमाम यहाँ पर ठहर के एहतजाज किए। हमारा मुतालबा ये थे कि मंदिर को और तोसी ना दी जाए, कोई नया तामीर के काम नहीं होना, और डीसीपी साहब हमको ज़बान दिए कि मस्जिद नहीं होगा बोल के। उसके बाद हम चले गए, जाने के बाद दोबारा काम करे, फिर आके यहाँ पे धरना दे के एहतजाज करे। डीसीपी साहब फिर बताए कि मैं एज इट इज़ रखूँगा, तो हम बोले आपकी ज़बान का भरोसा नहीं। पहली वक्त ज़बान पे गए, हम धोखा खाए, आपकी ज़बान का भरोसा नहीं, आप हमको राइटिंग में दो। तो उन्होंने राइटिंग में लिख के दिए कि ये एज इट इज़ रहेगा, मस्जिद इसकी तामीर और तरमीम का काम कोई भी नहीं होगा, हम नहीं कराएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसका वादा करते हैं बोल के राइटिंग में दिए। हमको तवक्को है कि वो राइटिंग पर उन्होंने कायम रहेंगे, क्योंकि राइटिंग में देने के बाद हम किसी भी अदालत में जाके वो राइटिंग बता के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको जबान देने के बाद, राइटिंग में देने के बाद उन्होंने नहीं कर सकते। इसलिए हम पुरअमन एहतजाज अपना ख़त्म किए हैं। हमको तवक्को है कि यहाँ के पुलिस की तरफ से यहाँ लैंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा अमन की बरकरारी के लिए। हम भी नहीं चाहते कि ये हालात यहाँ के बिगड़े, हम चाहते हैं कि अमन बरकरार रहे। पुलिस ऐसी कशीदा सूरत हाल में जहाँ शहर में हालात ख़राब है, उस वक्त पे ये काम का करना पुलिस की तरफ से खुद शरंगेजी पैदा करने के पुलिस जिम्मेदार है। इसलिए हम पुलिस से कहते हैं कि अमन बरकरार रखने के लिए पहले आप अपने अंदर जो सो एक सेकुलर जहन रखो, अमन के लिए जहन रखो, अमन कायम करने के लिए आप कोशिश करो, सेकुलर जहन रखकर इंसाफ के लिए। तो ये नाइंसाफ़ी के काम मत करो, आप ज़्यादती के काम मत करो, जिससे अमन कायम नहीं होता, अमन बिगड़ता है। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से हमारा पूरा मन एहतजाज अख्तिताम को पहुंचा। हम राइटिंग में इसका तयखुन लिए, हमको तवक्को है कि मस्जिद कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। शुक्रिया।
तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की बजाय शहर के एक ज़िम्मेदार रुकन असम्बली इमारत को नुकसान पहुँचाने वालों की हिमायत पर उतर आए हैं। तारीखी चारमीनार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश के वाक़े के बाद बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने शरपसंदों की कार्रवाई का दिफा किया। मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने इमारत को नुकसान से बचाने के लिए पहुंचे मजलिसी कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। किशन रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस मजलिस के इशारों पर काम कर रही है। టీవీలలో వచ్చింది ఇంతవరకు అక్బరుద్దీన్ మీద కేసు పెట్టలేదు కానీ దేవాలయానికి సంబంధించి దీపావళి డెకరేషన్ చేసుకుంటామంటే దీని మీద మరి ఈరోజు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడము పనులు ఆపడం ఏదైతున్నదో ఇది మంచి సాంప్రదాయం కాదు। నేను ఈ సందర్భంగా నేను పోలీస్ శాఖను ప్రభుత్వాన్ని తడుతున్నాను, గవర్నర్ గారిని కోరుతున్నాను, వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, మత సామరస్యాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది, మతాల మనోభావాలను ఏ మతమైనా సరే మతాల మనోభావాలను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది। అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే దౌర్జన్యం చేశారో ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సిందిగా నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను।